Hello, dear children. Good evening. Welcome to my YouTube channel, English Kingdom. This is your teacher Deepak Juneja, and today we are going to read about a very important topic of class 12th. The name of the topic is invitations. As you can see, it is floating on the screen also. So let's go to the next slide. Invitations are of two types: formal invitations and informal invitation. Formal invitation, as the name itself suggests, it has too many formalities, while informal invitation, there is no formality. What kind of formality actually we are talking of? Look at some of the examples of formal invitation. This is a formal invitation. Generally, at our homes also we get this kind of printed marriage cards or inauguration cards. In that way, you can see here, this is the example of formal invitation. Going to the next one. Again, okay, go back to the previous one. Messrs. Shyamlal and Sons announced the opening of Galaxy Novelties, a general store in Gitanjali Enclave, Dwarika, Delhi. Inauguration on Sunday, the 19th of October 2000, so and so, and at 11 a.m. All are cordially invited. Visit for all kinds of grocery and domestic items. Avail inaugural discount of 10% on all goods. RSVP. So you can see that this is a pamphlet come invitation. ये पैम्पलेट भी है और इनविटेशन भी है. इसमें कंपनी जो भी शॉप खुल रही है वो अपना प्रचार भी कर रही है, 10% डिस्काउंट भी दे रही है. एंड अगेन इट्स एन invitation also, because it is written all are cordially invited. I'm going to show you certain more examples. This is the example of a formal invitation of annual function. Look at this one. The principal, staff and the students of DAV Public School, Kasauli request your benign presence on the auspicious occasion of the annual function of the school at 10 a.m. on 1st of April. Mr. O.P. Chauhan, DM, will be the chief guest and will give away the prizes to the students. RSVP, the principal. So if you look at both the formal invitations, you will be finding that this RSVP is the important part of any formal invitation. And in any formal invitation, you will be giving the information about name of the event and when it is going to be conducted and where it is going to be conducted. These are the must informations which are supposed to be given. Go to the number 3 example of formal invitation. This is also again a formal invitation. Medical seminar. We take immense pleasure in inviting all the members of the Haryana Civil Medical Doctors Association to a talk on AIDS, a global concern, on so and so date at so and so place. Guest speaker Dr. P.S. Ahluwalia, HOD Medicine, PGIMS Chandigarh. The program will be followed by lunch. And again here organized by, it is written, but in place of that you can write RSVP again. So what is the meaning of this RSVP? I'm going to tell you later on. Look at this one. This is the perfect example of examination point of view formal invitation, because in that way in examination we write the formal invitation. Mr. and Mrs. In place of Mr. and Mrs. you can write Mrs. and Mr. for just for the sake of what to say, honor to ladies. So Mrs. and Mr. will be proper. Mrs. and Mr. Raj Karan request the pleasure of your benign presence on the auspicious occasion of the 5th birth anniversary of their son Nikhil at their residence so and so place at 4:30 p.m. on so and so date. RSVP. So again RSVP is there. Go to the next one. This is informal. So these were the examples of फॉर्मल इन्विटेशन. ये सभी फॉर्मल इन्विटेशन के एग्जाम्पल थे. अब ये जो RSVP होता है, इसका क्या मतलब होता है? RSVP का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड. आप ध्यान से सुन लीजिए. RSVP एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड, और हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं. ये फ्रेंच जो टर्म है हमने उनसे बोरो की है और उसी प्रकार से लिखी जाती है. तो फॉर्मल इन्विटेशन में होता क्या है? सबसे ऊपर नेम ऑफ द पर्सन हु इज इन्वाइटिंग. लुक एट दिस वन. इस लैंग्वेज को आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज रख सकते हैं. रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, अब ये योर यहाँ पर नहीं आना चाहिए. प्लेजर ऑफ द बेनाइन प्रेजेंस ऑफ सो एंड सो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन. तो इस तरह से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सब कुछ सही हो जाता है. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या लिखना है? ऊपर सबसे ऊपर लिखना है यहाँ पर इन्विटेशन. इन्विटेशन के बाद में यहाँ पर आएगा मिसेस एंड मिस्टर राज करण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, इतना लिखा. उसके नीचे आप जिसको इनवाइट करना चाह रहे हैं, जैसे आप इनवाइट करना चाह रहे हैं मिसेस एंड मिस्टर शर्मा को, तो आप लिखेंगे मिसेस एंड मिस्टर राज करण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ
और नीचे लिखेंगे मिसिस एंड मिस्टर शर्मा ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल एट देयर रेजिडेंस 38 कमल कुंज वाराणसी एट 4:30 PM ऑन 28th of December RSVP में। फिर ये जिस व्यक्ति ने इन्वाइट किया है ही विल बी राइटिंग हियर नेम, he will be writing his name along with phone numbers here. So this is a proper way of writing a formal invitation. अब मैंने इसमें कुछ चेंजेस इसलिए किए हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इन फॉर्मल इन्विटेशन वी डू नॉट यूज़ फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फॉर्मल इन्विटेशन में हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं करते हैं। आगे एग्जामिनेशन टिप्स में आपको ये मालूम पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर योर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पीछे वाले फॉर्मल इन्विटेशंस में भी हम जाएं तो जैसे ये वी है, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हम यहाँ पर ये लिख सकते थे द स्टाफ मेंबर्स, या फिर जिसने ये एसोसिएशन ने इन्वाइट किया है तो the members of the association take immense pleasure in inviting all the members of Haryana Civil Medical Doctors Association to a talk on AIDS, a global concern on so and so date. Guest speaker, the program will be followed by, और फिर यहाँ RSVP है तो ये पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आई, वी, माई और ये यू, योर जैसे वर्ड्स का यूज़ इसमें नहीं करना चाहिए। इन प्लेस ऑफ दैट यूज़ थर्ड पर्सन, दे, दैम, देयर, इस तरह का यूज़ करें। एक बार पीछे और चलते हैं, इसको देखिए। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ DAV पब्लिक स्कूल कसोली रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, या आप यहाँ लिख सकते हैं रिक्वेस्ट द बिनाइन प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन, या फिर आप ये लिख सकते हैं रिक्वेस्ट द बिनाइन प्रेजेंस ऑफ, उसके बाद में आपने इस पर्सन का नाम लिखा, जो भी पेरेंट्स हैं उनका नाम लिखा, और फिर ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन। शादी के कार्ड्स में भी तो ऐसे ही किया जाता है, जिसको इन्वाइट करना होता है उसका नाम ब्लैंक में छोड़ दिया जाता है, उसका फिर बाद में नाम एंट्री किया जाता है। तो दिस इज़ फॉर्मल इनविटेशन। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट, बट दैट वन थिंग इज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि आपको इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। नाउ दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, इट इज़ हैविंग वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जैसे दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, इन दैट वे इट इज़ रिटन एंड यू कैन सी इट्स फॉर्मेट आल्सो, इट्स रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। जैसे लेटर लिखा जाता है वैसे ही लिखा हुआ, जैसे डियर राहुल, विल यू गिव मी द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट ए पार्टी ऑन 28th of August at 8 PM. You will be glad to know that I have been selected for NDA both in written and in Viva. Please let me know over phone if for some reason you won't be able to come. Hope to see you at the party. Yours sincerely. In that way you can write. This is not the standard language. You can write in any way, where whichever the language you like to write in, जिस तरह की भी आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, जो इनफॉर्मल हम आपस में फ्रेंड्स गॉसिपिंग करते हैं उस लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है, डोंट यूज़ SMS लैंग्वेज, SMS लैंग्वेज का यूज़ ना करें। किसी भी प्रकार की मैसेज की लैंग्वेज, जैसे यहाँ यू की जगह जैसे सिर्फ यू लिख के छोड़े, दैट वुड बी इम्प्रॉपर टू से, इसका थोड़ा प्रॉपरली आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें चलिए आगे चलते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन में एक और इनफॉर्मल इनविटेशन का एग्जांपल, दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ एन इनफॉर्मल इनविटेशन। हियर आल्सो यू कैन सी the person who has written the informal invitation, he has written his address. Dear Vipin, you will be glad to know that Aditi's wedding has been fixed and the big occasion will take place on 20th of October at Hotel Vikram, Lajpat Nagar. We look forward to your presence along with your family at the wedding. Rest when we meet. So yours affectionately, you can write anything. Yours lovingly also you can write, yours affectionately also you can write, yours sincerely also is the proper phrase. No, nothing is special about it or nothing is specific about that one. Okay, one thing is to be kept in mind while you write formal or informal invitation. आप चाहे formal लिखें चाहे informal लिखें, दोनों में आपको word limit जो होती है वो 50 words रखनी होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक formal का एग्जाम्पल और एक informal। ये देखिए formal का एग्जाम्पल, ये पूरे तरह से फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक अच्छे से स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, लैंग्वेज इसकी हल्की फुल्की फिक्स होती है, आप उसी लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वाला पूरा का पूरा आप ऐसा का ऐसा कॉपी कर सकते हैं। खाली यहाँ नेम ऑफ द इवेंट चेंज कीजिए, प्लेस वगैरह चेंज कीजिए, डेट टाइम चेंज कीजिए, RSVP लिख दीजिए और फिर जिसने इन्वाइट किया उसका नाम यहाँ लिख दीजिए, हो गया फॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल में आपको उसको लेटर के रूप में लिखना है। इट हैज़ नो फिक्स लैंग्वेज, यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज विच सूट्स यू। आपको जो लैंग्वेज फ्रेंडली जो लैंग्वेज होती है, कॉन्वर्सेशन की जो लैंग्वेज होती है, जो दो फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं, उस तरह की लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जामिनेशन टिप्स।
यूज ओनली थर्ड पर्सन, केवल थर्ड पर्सन का यूज करें, दे, देयर, देम वाइल राइटिंग ए फॉर्मल इन्विटेशन। ये याद रखना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल नहीं थे, वो बाहर जो पब्लिक लाइफ के एग्जाम्पल हैं। पब्लिक लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव फॉलो किया जाता हो, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से यहाँ ध्यान रखना है। यूज फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, आई, माई, मी, यू, योर, while writing an informal invitation। लेकिन जब आप informal invitation लिख रहे हो, कौन सा लेटर वाला, then you should use I, my, me, you, your। There is no restriction on that one। Maintain the word limit of 50 words। Again, when I say maintain the word limit of 50 words, actually I'm talking about the word range, and the word range is 45 to 55 words। चाहे formal हो चाहे informal invitation हो, आपको दोनों में ही 50 वर्ड्स 45 से 55 की वर्ड रेंज को मेंटेन करना है। राइट RSVP एट द एंड ऑफ ए फॉर्मल लेटर, एंड दैट आल्सो एट द लेफ्ट हैंड साइड, नॉट एट द राइट हैंड साइड। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट वन। गिव इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द इवेंट, व्हेन एंड वेयर नेसेसरीली व्हाइल राइटिंग ए फॉर्मल इन्विटेशन। आपको फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, इसमें आपको इवेंट का नाम, कब, कहाँ, ये सब चीज़ें तो लिखनी ही चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि इनविटेशन अपने आप में एक सस्पेंस बन जाए। इनविटेशन में पता ही नहीं क्या इवेंट है, इनविटेशन का ये पता नहीं कहाँ होगा, कब होगा। दैट शुड बी क्विकली मेंशन्ड। ओके, नाउ दिस, लुक एट दिस वन, रिप्लाई टू फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे किया जाता है, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल फिक्स होती है। आप इसी लैंग्वेज को याद कर लीजिए, इसी लैंग्वेज को लिख के आ जाइए, देयर इज़ नो इशू इन दैट। सिर्फ इसमें नाम चेंज करने होते हैं, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू से यस, तो कैसे लिखेंगे? आपको सबसे पहले ये रिप्लाई लिखना है ऊपर, देन ये उसी इन्विटेशन का रिप्लाई है जो आपने ये वाला देखा, ये इन्विटेशन, ये हाँ एनुअल फंक्शन वाला जो इन्विटेशन ये वाला है, इसका रिप्लाई हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए कैसे लिखा है इसका। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा को जैसे इनवाइट किया गया, किसी बच्चे के पेरेंट हैं, तो यस में एक्सेप्ट करते हुए इनविटेशन कैसे लिख रहे हैं? मिसेस एंड मिस्टर शर्मा थैंक द प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ द स्कूल फॉर द इनविटेशन। तो आप यहाँ पर जो रिप्लाई लिख रहा है वो अपना नाम लिख सकता है, और जिसने इन्वाइट किया है उसका नाम यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये चेंज हो सकता है। They will be in time there to attend the function। They convey their best wishes to school students। They convey their best wishes to school students लिखा है, इसकी जगह अगर आप कोई दूसरा आ जाए तो आप लिख सकते हैं They convey their best wishes to family members। They will be in time there to attend the function। और आप ये यहाँ पे ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि They are happy to accept the invitation। ये लाइन और ऐड कर सकते हैं, They will be in time there to attend the function। हो गया, ये यस का हो गया। अगर ये नो वाला है तो नो वाले में क्या लिखना है? स्टार्ट ऐसे ही करना है, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा थैंक द प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ द स्कूल फॉर द इनविटेशन। अब आप नहीं जा पा रहे तो दे एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन फॉर सम अर्जेंट वर्क। दे कन्वे देयर बेस्ट विशेस टू स्कूल स्टूडेंट्स, या दे कन्वे देयर बेस्ट विशेस टू फैमिली मेंबर्स। तो ये नो वाला हो गया, इसकी भी लैंग्वेज फिक्स है, याद रखिए। दिस इज द रिप्लाई टू फॉर्मल इनविटेशन। ये फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई है जो शादी के कार्ड या किसी सेरेमनी के कार्ड प्रिंटेड छपवाए जाते हैं उनके, ये भी थर्ड पर्सन में ही लिखे जाते हैं। इसकी भी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है, 45 से 55। आप चाहो तो अगर आपके 45 वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसमें आप कुछ सेंटेंसेस यू कैन ऐड देम, आप ऐड कर सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिग्निफाइड लैंग्वेज होनी चाहिए और थर्ड पर्सन का ही यूज़ करें, तो ये रिप्लाई टू फॉर्मल इन्विटेशन बन जाएगा। Coming to reply to informal invitation, because informal invitations are in the form of letter, तो इसलिए we will be writing their reply also in the form of letter। So you can see here this address is given there and this is the reply to that one। इसका reply मैंने लिखा है, ये जिसमें ये देखिए आप, ये जिसने विपिन को इनवाइट किया गया है अदिति की वेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मीता जो है विपिन, मीता जो है अपना रिस्पॉन्स देगी। ओके, मीता ने इनवाइट किया है विपिन को, तो विपिन अपना रिस्पॉन्स देगा। तो कैसे दे रहा है? अगर उसने एक्सेप्ट किया इनविटेशन को तो डियर मीता, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू नो। लुक एट दिस वन, दिस अगेन हैज़ द सेम लैंग्वेज। इसमें वही फ्रेंड्स वाली लैंग्वेज कि मुझे तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट है या मुझे तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं है। आप इसकी लैंग्वेज देखिए, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है। आई और यू, माई, मी का बहुत सारा यूज़ किया गया है इसमें। आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट अदितिज मैरिज। आई हैव टॉक टू माई एंड पा अबाउट दिस एंड दे हैव परमिटेड मी टू अटेंड दिस मैरिज फंक्शन। आई विल बी देयर ऑन 19th of October। In fact, I have talked to Anil and Sunil also about that। They also will be joining on 19th of October। It will be a great time and reunion for us। Waiting to meet you soon, your friend Vipin।
So short reply is there. It also should have the word limit of 50 words only. Don't go beyond that one. इस 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट के बाहर नहीं जाना है. अब अगर इसको रिफ्यूज करना है इन्विटेशन, लुक एट दिस वन. रिफ्यूज किया गया. शुरुआत की लाइन वही है, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट अदिति's मैरिज, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट माय नीट एग्जाम आल्सो कोइंसाइड्स द डे. कोइंसाइड का मतलब उसी दिन पढ़ देना, संयोग ऐसा हो जाना कि उसी दिन है. Therefore, this spelling of therefore is wrong. THEREFORE. Therefore, I will not be able to join it. However, my best wishes are with Aditi. I will badly miss this opportunity. It could have been a great time and reunion for me with all friends. But what to do? I can't miss this exam also. So you can see here, short questions are also there to make the language conversational. जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं उस तरह की लैंग्वेज. तो आप जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं उस तरह की लैंग्वेज का यहाँ यूज कर सकते हैं. बट this is subject to one condition, that you cannot use SMS language here. SMS लैंग्वेज आप कभी भी यूज ना करें. व्हाट्सएप में चैटिंग जिस तरह से करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो भी सेंटेंस होने चाहिए पूरे. उसमें जिस तरह की आप शॉर्ट फॉर्मेट्स का यूज करते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है. So this was all about two types of invitation, formal and informal, and their replies. I hope I could make all the points clear. Yet if you have any query, please drop a comment in the comment box. Thank you.